Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. Good evening, Amit. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ रंगा। Thank you, Amit. The top stories. Oil prices fall to lowest this year. Brent crude prices eased to $60.80 per barrel. Major Asian stocks decline amid trade tensions and signs of slackening of global growth. And gold prices slipped to 31,950 rupees per 10 grams at the Delhi's bullion market. आर्थिक सुर्खियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरावट के साथ इस वर्ष के सबसे निचले स्तर तक दर्ज। ब्रेंट क्रूड के भाव गिरावट से $60.80 प्रति बैरल हुए। व्यापारिक तनाव और आर्थिक वृद्धि में कमी के संकेतों से प्रमुख एशियाई बाजारों में गिरावट। और दिल्ली सराफा बाजार में सोना गिरावट से 31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज। Well, now for the details, let's start off with the oil scenario. Oil prices today fell to their lowest this year, on course for their biggest one-month decline since late 2014, when OPEC opted to pump as much crude as it could to gain market share and sent prices on a near unbroken two-year slide. Brent crude prices in intraday trade today were trading around $60.80, while WTI prices were at around $52.20 when reports last came in. Puneet, good news for the entire global economy as such, and specifically for our country. You know, we have seen prices peaking, and this surely is a big sense of relief for economists and the Indian government. Absolutely, Ranga. I think this is one of the most important economic variables, I would say, for the Indian economy, because we import almost 80% of our oil requirement and spend nearly $150 billion a year on importing crude oil. So a sharp fall there saves us very precious dollars. It also brings down the price of oil, petrol, diesel, these energy products, and which brings down inflation. So, and it affects interest rates, it affects liquidity in the markets. So oil is not just about diesel prices and petrol prices. Oil affects every walk of our economy. It impacts practically every economic, I would say, pillar of the of our system. So clearly, I think a decline in oil prices is very good news for us. It will strengthen the rupee also. It will give some reason to RBI to ease monetary policy. In fact, keep interest rates low, or maybe going forward, maybe cut interest rates a little bit. So all those positives would really flow from low oil prices. एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आम उपभोक्ता के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरती हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हम देखते थे हर रोज अखबार में या टीवी के जब चैनल शुरुआत करते थे सुबह, तो ये होता था कि आज पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में इतनी तेजी हुई, इतने पैसे की वृद्धि हुई और वो ऐतिहासिक स्तर पे पहुंच गया, 90 रुपए पहुंचने वाला है, 100 रुपए पहुंचने वाला है। इस तरह के अनुमान और इस तरह के बहुत सारे संकेत जो है वो चिंताजनक संकेत रोजाना मिलते थे। अब चूंकि काफी दिन थे, मेरे ख्याल से तकरीबन एक सप्ताह से कुछ ज्यादा ही हो गया होगा जब इस तरह की खबरें नहीं सुनने को मिलती, और एक अच्छी भरी कहीं ना कहीं छोटे अक्षरों में शायद नजर आती है कि पेट्रोल की कीमतों में आज इतने पैसे की कमी आई, डीजल की कीमतों में इतने पैसे की कमी आई। ये संकेत कितने स्थायी नजर आते हैं और एक आम उपभोक्ता के लिए, एक आम जनता के लिए ये जो राहत है वो फिलहाल के दौर में आपको कितनी लंबी नजर आती है? अमित, देखिए, हालांकि
जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो बहुत वॉलेटाइल हैं। यानी अगर हम सितंबर करीब 1-1.5 महीने पहले मैं जाऊं तो जैसे आपने कहा कि रोज ये खबर आती थी चिंता करने वाली कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और अक्टूबर के महीने में कच्चे तेल की कीमतें, क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो काफी पीक पे $86.5 पर बैरल तक पहुंच गई थी, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय था भारत के लिए। और अचानक, और सब वहां पर ऐसी प्रेडिक्शंस आ रही थी, ऐसे फोरकास्ट आ रहे थे कि ये अब $100 पहुंच जाएगा, और तेल की जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं ये ₹100 पर लीटर पहुंच जाएंगी। लेकिन अचानक वहां से डॉलर ने, क्रूड ऑयल प्राइसेस ने रिवर्स गियर मारा, और अचानक हम देख रहे हैं कि वहां से 30% नीचे करीब $60 पर ऑयल आ गया है। तो ये सही बात है कि ये बहुत वॉलेटाइल है ऑयल प्राइसेस। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कितने समय तक ये नीचे लेवल पर टिकेंगे, लेकिन यदि मैं कमेंट्री पढ़ता हूं, जो डिमांड सप्लाई सिचुएशन है, ओपेक ऑलरेडी बात कर रहा है, जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। उनको लगता है कि ये आने वाले दिनों में कीमतें और नीचे आ सकती हैं, इसकी वजह से वो प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये नैरेटिव है इसकी तरफ अगर ध्यान दें तो मेरा अंदाजा है कि सप्लाई सिचुएशन काफी कंफर्टेबल है, और आने वाले दिनों में डॉलर के जो तेल की कीमतें हैं वो काफी स्टेबल रहेंगी। मैं इसकी तरफ रशिया का जो अंदाजा है, बिकॉज रशिया एक बहुत बड़ा, इसमें देखिए पहले सऊदी अरेबिया ऑयल मार्केट को डोमिनेट करता था एज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल। अब हाल ही में पिछले 4-5 वर्षों में रशिया के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ रशिया एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बनकर उभरा। मोर देन 11.5 मिलियन बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस करते हैं। और अभी बिल्कुल हाल ही में पिछले 2-3 महीनों में हमने देखा अमेरिका ने रशिया को भी ओवरटेक करके अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर, करीब करीब 12 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन से अमेरिका अब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। तो अब वो जो पहले एक मिडिल ईस्ट की कंट्रीज डोमिनेट करती थी ऑयल मार्केट को, अब वो बात नहीं रही। अच्छा, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, आम लोगों के लिए तो अच्छी खबर है, सरकार के तौर पे ये खबर कितनी राहत भरी है, और सरकार के लिए फौरी तौर पे ये खबर कितने उत्साहजनक संकेत लेकर आई है, क्योंकि बहुत सारे मोर्चे पे सरकार इस कारण से भी पिछड़ती हुई सी नजर आ रही थी, या कहीं ना कहीं बचाव मुद्रा में थी, क्योंकि उस पे ऐसे आक्षेप भी लगते थे, और कहीं ना कहीं ये भी अंदेशा आने लगा था कि जो हमारे चालू खाते का घाटा है वो उस पे इस तेल की कीमतों की मार ना पड़ जाए। बिल्कुल। तो आर्थिक मामलों में तो मैं कहूंगा कि ये रियली में अच्छे दिन की शुरुआत है सरकार के लिए, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने के साथ हर प्रकार से जो मुसीबतें थी, करंट अकाउंट डेफिसिट की हम बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन से जुड़े हुए इंटरेस्ट रेट्स की बात करें, तो सभी पिछले अगर आप 5-6 महीने देखें तो इन सभी मुद्दों पर सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर बना हुआ था, और एक स्ट्रगल सी थी फिस्कल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की। अभी जो मैं आज की अनुमान को देखता हूं, तो क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो ऐसा अनुमान है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा है इस वर्ष का, वो शायद अब 2.5 से 2.6% ऑफ द जीडीपी, एक बहुत अच्छा अनुमान है। बिकॉज पहले ये था कि 3.5% या 4% तक भी पहुंच सकता है, वो शायद अब 2.5% ऑफ द जीडीपी पे करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा रहेगा। उससे सीधा सीधा असर रुपए के ऊपर पड़ता है, रुपया स्टेबल है। जैसे आपने देखा कि रुपए की स्तर 71 रुपए से भी नीचे आ गया कल, और अब 70.67 के आसपास है। ऐसा अनुमान है कि ये अब 70 रुपीज के आसपास ही ज्यादातर समय रहेगा। तो एक उससे मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ जाती है। सरकार को जो एक चिंता थी कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ सकता है, क्योंकि टैक्स कलेक्शन कम होती है, जैसे पीछे टैक्स काटा सरकार ने, वहां एक फिस्कल स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो कई फ्रंट्स पर, जहां पर इकोनॉमिक फ्रंट्स पर, जहां पर सरकार को बहुत प्रेशर था, वहां पर उनको बहुत फायदा है। Puneet, let's also talk about the Iran angle. In the past few months, because of sanctions, entire global economists were predicting that probably because of the sanctions on Iran, the price would move up, which hasn't. It's a nice, pleasant surprise that prices have come down. What kind of role will Iran play as far as oil prices is concerned? So, in the short term, I think Iran has had a huge impact on oil prices, because just before the sanctions were to kick in, which is the first week of November, there was a lot of build-up of expectations that prices will shoot up, and so therefore in October we saw crude prices peak at 85-86, because there were fears that there will be a shortage of oil. Two things happened. One is, I think there was an excessive build-up of inventory ahead of the sanctions kicking in. Secondly,
just before the sanctions actually came into effect, US gave exemption to 8 large producers or consumers of oil from importing Iran oil from sanctions. So India, China, South Korea, Japan, these are very large consumers and large importers of oil from Iran. They have been given 6 months exemption from sanctions, and I think that has really brought down the sentiment a lot. Immediately we saw the prices head lower. There's a belief that a very large inventory will flow from Iran to many of these countries over the next 6 months. So I think they really changed the fundamentals of the oil economy. Yeah, but oil experts were, kind of guessing that OPEC will cut down on production so as to, stop the fall in oil prices. But that didn't happen. It seems OPEC wants to make the most of it. So OPEC is meeting on the 6th of December to consider production cuts. And this is OPEC plus actually. So OPEC is largely the Middle Eastern countries, and OPEC plus is Middle Eastern countries and Russia, because Russia is also a large exporter of oil. So these people are meeting on the 6th of December to consider production cuts. Saudi Arabia has proposed cutting production by about 1 million barrels to 1.5 million barrels per day. If that happens, then I'm sure oil prices will stabilize or maybe will move higher. But right now, the expectations are that it will be difficult to implement because a lot of new capacity is coming in. Libya is suddenly, they're producing more and they want to produce more. Iraq, similarly, Iraq has very large capacities which are not working. Iraq wants to export more. So it won't be easy for OPEC to really cut back on production in the short term. पुनीत, एक चीज और, जैसे कि आम उपभोक्ता के लिए आपने बता दिया, सरकार के लिए बता दिया, अब रिजर्व बैंक की बारी आती है। रिजर्व बैंक को कितनी राहत मिलती हुई नजर आती है, बाजार में कितनी लिक्विडिटी वो और देने की स्थिति में होगा, और अभी जो रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति आने वाली है उसमें एक उद्योग जगत के लिए ब्याज दरों में क्या कुछ राहत भरी खबर रिजर्व बैंक सीधे तरीके से या परोक्ष तरीके से दे सकेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो कंडीशंस हैं, अब फिस्कल कंडीशंस जो हैं या इन्फ्लेशन या इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल हैं टुवर्ड्स इजी मनी पॉलिसी। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि रिजर्व बैंक कोई जल्दी ही हाल ही में इंटरेस्ट रेट्स कट करेगा, लेकिन जो मॉनेटरी टाइटनिंग वो कर रहे थे उस पर काफी असर पड़ेगा। देखिए, इन्फ्लेशन का जो लेटेस्ट आंकड़ा, मैं एसबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका आपको अनुमान बताता हूं। उनका अनुमान है कि आने वाले 6 महीने तक इन्फ्लेशन 2.5 से 3% के बीच में रहेगा। यदि इतना लो इन्फ्लेशन रहता है तो आरबीआई के पास कोई कारण नहीं है कि वो मॉनेटरी टाइटनिंग करें या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं। मुझे लगता है ये एक आर्थिक उद्योग जगत के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होगी। साथ में खास तौर से जब ये ऐसा अनुमान आ रहा है कि अमेरिका में यूएस फेडरल रिजर्व भी 2019 में शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाए। अभी तक हम 2 या 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स की बात कर रहे थे। लेटेस्ट जो प्रोबेबिलिटी है, कर्व होता है वहां प्रोबेबिलिटी कर्व, उसके अनुसार वो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 20-25% रह गई है कि वहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक आएंगी 2019 में। तो मुझे लगता है कि रिजर्व जो फिस्कल, यदि हम डेफिसिट की, जो फिस्कल कंडीशंस की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, देखिए इंडिया में रेपो रेट जो है वो 6.5% है, जो रिजर्व बैंक का जो रेपो रेट डिसाइड करता है। और इन्फ्लेशन अगर हम 3% मान के चलते हैं या 3.35% भी मान के चलते हैं तो रियल रेट जो है वो 3% हो जाता है। ये बहुत ज्यादा है। रियल रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अपना मानना ऐसा है कि 2% होना चाहिए, यानी इन्फ्लेशन के 2% ऊपर जो है रियल रेट होना चाहिए। तो यदि मैं इस आंकड़े को देखता हूं तो मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक के पास हेडरूम है आने वाले कुछ समय में कि वो इंटरेस्ट रेट्स को नीचे भी कर सकते हैं। एक चीज और, जिस तरह की सरकार ने, क्योंकि छोटे उद्योग या मझोले उद्योगों को, एमएसएमई के लिए कुछ लोन की स्कीम से सरकार लेकर आई थी, जिससे कि उस तरह से उनको एक फौरी तौर पर तरलता या लिक्विडिटी या कहीं ना कहीं जो पैसा था उनको मिलने में सहूलियत हो सके। इन सारी स्थितियों का बैंकों की सेहत पर और सरकार की मंशा पर कितना सपोर्ट मिलता हुआ नजर आता है? देखिए, बैंक्स की जो सेहत है वो काफी, उसमें सुधार आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन वो डायरेक्शन जो है वो काफी पॉजिटिव है। क्रेडिट ग्रोथ की जो आंकड़े आए हैं हमारे सामने, 15% ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ आई है, विच इज वेरी इंप्रेसिव फॉर बैंक्स। यानी जो एक मैं कहूंगा फ्रीज आ गया था मार्केट्स के अंदर, क्रेडिट मार्केट्स में, वो फ्रीज अब खत्म होता नजर आ रहा है और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप कर रही है।
खास इंटरेस्टिंग बात उसमें यह है कि सरकार का जो मेन जो फोकस है वो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के ऊपर है। वो चाहते हैं कि जो मध्यम वर्ग के या छोटे वर्ग के जो उद्योग हैं उनको ज्यादा क्रेडिट मिले। और बैंक्स भी मुझे लगता है कि लार्ज कॉर्पोरेट्स को भी पैसा नहीं दे रहे, वर्किंग कैपिटल के लिए दे रहे हैं लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दे रहे। तो डेफिनेटली स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, स्मॉल बिजनेसेस विल बी बेनिफिटेड। यार इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ने से पहले लेना होगा एक कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Welcome back, listeners. You are tuned in to Market Mantra on AIR FM Gold. Puneet, just before going into the break, you were talking about the Reserve Bank and you know how it would be from here on as far as interest rates are concerned. You said that in all probability there is no case for increase of जोड़ना चाहूंगा पुनीत, चूंकि चर्चा बीच में रह गई थी MSME और SME सेक्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने पिछले एक साल में कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि चूंकि अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब GST आने के बाद कुछ न कुछ इस तरह की चीजें आई थी जिसका जो कॉम्प्लाई करना शायद उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था। सरकार के इस कदम से जो मझोले और छोटे उद्योग हैं उनको कितनी राहत मिलेगी और रिजर्व बैंक कितनी और आगे बढ़कर उनको मदद कर पाएगा, जिससे कि वो जो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा मात्रा में रोजगार उत्पन्न करता है और बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं ना कहीं GDP में सीधे तरीके से नहीं लेकिन परोक्ष तरीके से कंजम्पशन को भी बढ़ाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME सेक्टर जिसे हम कहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरी अर्थव्यवस्था का। और ये बात सही है कि जो ट्रांजिशन पीरियड रहा डिमोनेटाइजेशन के बाद GST को लेकर एक कठिन समय जरूर था, क्योंकि इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में बिजनेसेस आ रहे थे, उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत थी, ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड उनको बिजनेसेस की जरूरत थी। तो मुझे लगता है कि वो जो रोल है सरकार का कि इजियर क्रेडिट प्रोवाइड करना या रिफॉर्म्स करना, वो उस पर काफी कारगर तरीके से काम कर रही है। और खास तौर से मुझे लगता है क्रेडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अभी हाल ही में जैसे हमने सुना कि 59 मिनट्स में 1 करोड़ तक का लोन आप पा सकते हैं, विच इज आई थिंक वेरी गुड। उसमें कोई खास क्वालिटी की जरूरत नहीं है, बड़ा फास्ट है। तो इस प्रकार के कदम सरकार ने उठाए हैं। मुझे लगता है कि माइक्रो बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये बहुत ही यूजफुल है। And talking about the interest rates and the entire gamut of options which are available for a common person, what would you say now, given this scenario that interest rates are not going to increase, what all options does a common person have for savings and especially security in old age? Very interesting, because see, all these large economic concepts, they appear to be so esoteric that we believe that we know the man on the street doesn't feel affected by it, or doesn't know how to benefit from it. So I think it is important that we understand that all this really funnels down into effective things for people on the street. Tangible benefits for them. For example, if you look at a small microscope from a small saver's point of view, there are certain schemes which are available, which he can lock into those schemes and really take long-term benefits. I would like to really focus on 2-3 schemes which are there for the common man. We know PPF, the Public Provident Fund, which is under Section 80C of the Income Tax Act. There's an exemption of up to 1,50,000 rupees a year. People can invest in this PPF, and it provides very good tax-exempted returns, so above 8% return. Probably the only scheme where it is exempt at all the 3 stages of investment. So while you invest, you get a tax exemption. The interest that one earns on it is also exempted from tax. And also, withdrawal. When you withdraw, it is tax exempt. So it's a very, very effective long-term tool for saving money. Investors can also open accounts, PPF accounts in the names of minors, and they can save money for their children, for their education, for long-term marriage and other things. It's a very, very effective thing. See, usually what we see is that Employees Provident Fund, EPF,
is a facility available only to those who have a formal employment, no? People who are working with large companies or in government organizations, or factories, only they are able to use EPF facility. Yeah. So PPF, Public Provident Fund, is also available to people who are not formally employed. Yes. They may be self-employed, they may be doing their own small businesses. So they can open the PPF accounts in their own name, in the names of the children, minor children, and contribution in all these accounts, if it goes from, so let's say I have a minor child or no, one or two children, and I open PPF accounts in their names, and I contribute to those accounts, then I will get the benefit of tax on those contributions. So I think it's a very useful thing. Also, it offers, to my mind, one of the highest interest rates among all savings instruments. So the first priority for most savers should be to open the PPF account. And it can be opened in any bank? It can be opened in any bank. It can be opened in post offices. So it's very easy to open and it's very easy to operate. तो पुनीत, क्या ये माना जाए कि चूंकि जब ब्याज दरों पे जो एक बैंक की जो ब्याज दरें हैं फॉर्मली तौर पे जब घट रही हैं, तो निश्चित तौर पे जो एक सावधि जमा या एफडीआर जिसे कहते थे, कहीं ना कहीं उस पे जो ब्याज का जो चाव था वो कहीं ना कहीं अपनी शायद चमक खो रहा है। ऐसे दौर में जो ईपीएफ, पीपीएफ और आपने जो एक कुछ और स्कीम्स का भी जो जिक्र कर रहे हैं, ये एक आम उपभोक्ता के लिए जो इनकम टैक्स का जो आयकर के जो लाभ हैं वो भी दिला रही हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनके सुरक्षित भविष्य की तरफ भी लेके जा रही हैं। देखिए, जो स्कीम्स को डिजाइन किया गया है वो इस तरह से है कि वो आप उसको लंबे अरसे में सेव करके उसको यूज कर सके। जैसे पीपीएफ में आप जो पैसा डालते हैं वो आप एकदम फौरी तौर पर निकाल नहीं सकते, उसको 5 वर्ष के बाद ही आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम आप तुरता फुर्ती में वो खर्च कर दें पैसा। इसी प्रकार की एक स्कीम है और ब्याज दरें भी नॉर्मल एफडीआर से ज्यादा रहती हैं। तो 8% से ऊपर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा मिलता है जी। हम जानते हैं कि ईपीएफ जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है वो एम्प्लॉइज जो जहां पर फॉर्मली एम्प्लॉयड हैं वहां वो सेव कर सकते हैं, वहां भी यही रेट्स करीब एप्लीकेबल होते हैं। साथ में ही वहां पर आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ भी खोल सकते हैं, जब you can contribute more. तो एंड यू कैन contribute more, you may not get more tax benefit, but what happens that interest income is again exempt from tax. The benefit of tax exemption on interest income, that is kicks in for voluntary provident. ये काफी अच्छी, चूंकि सीधी सी बात है, आमतौर पे शायद इससे कहीं ना कहीं एक आम उपभोक्ता इससे वंचित रह जाता है कि जो ब्याज उसको कमाएगा उस पे वो रकम भी कहीं ना कहीं उसको आयकर की धाराओं से बची हुई रहेगी। Thirdly, then there is a benefit of NPS, the new pension scheme, which is really, I think, one of the finest schemes people can, and a lot of people are not aware of it. And it's touted to be the lowest cost pension fund in the world. Lowest cost pension fund. Plus, it gives you tax exemption above the ATC, which is above the PPF. So, if I save 1,50,000 in PPF, and I contribute another 50,000 rupees in NPS, up to 50,000 rupees, that is also exempted from tax. So actually one can save up to 2 lakh rupees. 2 lakh rupees. In 150 in PPF and 50,000 in NPS. NPS of course has two branches. One is called NPS 1, which is tier 1 scheme, which is basically for saving for the, or it's a pension. Old age, technically a pension scheme, because what you contribute that you will get over a period of 10, 15, 20 years when you become, reach a certain stage. There is NPS 2 or tier 2 scheme, which is basically investment. It's like any other mutual fund. You can put in money, you can withdraw money. So these are really useful schemes. I think investors should get to know more about them, because here we cannot provide all the details. But I would like to motivate people to really consider saving these at every possible opportunity. And the first thing they do is save there. And in Market Mantra we do try to spread the word. आज शायद रंगा और पुनीत, मैं सारे श्रोता हमारी इस बात से निश्चित तौर पर लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम शेयरों की बात बहुत करते थे, म्यूचुअल फंड की बात बहुत करते थे, लेकिन इस तरह की चीजें जो सरकार के द्वारा एक अच्छी चीजें दी गई हैं, कहीं ना कहीं हमारी नजर उससे चूक जाती थी। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा पर्सनली भी, और वैसे जो मैं अपने दोस्तों विशेषज्ञ के तौर पे भी, कि शेयरों में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले पीपीएफ अकाउंट खोलना चाहिए अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने नाम से, अपने बच्चों के नाम से। एनपीएस अकाउंट खोलना चाहिए, उसके बाद शायद शेयर जैसे स्लाइटली रिस्की वेंचर में जाना चाहिए। जी, खबरें डालते हैं कुछ और नजरों पे।
कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मंदी का दौर रहा। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध के बीच सभी निवेशकों की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की इस महीने होने वाली बैठक के नतीजों पर लगी हैं। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 2.6% लुढ़ककर बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.4% और दक्षिण कोरिया की कोस्पी में 0.6% की गिरावट रही। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स 0.4% की बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। जापान के शेयर बाजार में आज अवकाश रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में फ्रांस, जर्मनी और लंदन के शेयर सूचकांक 0.3% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए, जबकि अमेरिका में थैंक्स गिविंग के कारण शेयर बाजार में आज And something similar in our country because of public holiday due to Guru Purab, the stock markets were closed. Yes, Puneet, but as far as the entire stock markets are concerned, whether it is our domestic stock markets or Asian or global stock markets, where are the markets headed? So, Rangash, I think briefly I would say that markets have gone through a lot of pressures on account of all the macro factors that we talked about, oil prices, interest rates, etc. But I think most of these are now reversing, and we are seeing return of risk appetite in the global markets. My own sense is that in the short term, for the next maybe a few weeks or a couple of months, maybe 2-3 months, we could see the markets strengthening from the current levels. In India, particularly because emerging markets are seeing the reversal of carry trade. So we are seeing foreign funds come back to India and other emerging markets. So India, we could do very well going forward for a couple of months, 2-3 months. Globally also, I think markets are headed to stabilize. US, of course, is different because US has a lot of tech issues going on right now. But I think other markets look very stable right now. Yeah. So can we expect to say happy days are here again, after a couple of weeks? Yes, but see, in India, we have, of course, have issues which will lead to volatility in these markets. So I do not expect markets to remain secularly going up because of local factors. But I think general trend of the markets is going to be higher from here. कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना स्टैंडर्ड 90 रुपए की गिरावट से 31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 200 रुपए के नुकसान से 37,800 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक स्तर पर कमजोर संकेतों के साथ साथ घरेलू स्तर पर मांग में कमी से सोने के दामों में नरमी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना 0.3% की गिरावट से $1,224.20 प्रति ऑन्स के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 1.3% के नुकसान से $14.38 प्रति ऑन्स के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, सोने का जो चमक है, हालांकि बहुत दिनों से ये ऐसा, मैं खासतौर पे अगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं देख रहा हूं $1,200 के आसपास कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर बना हुआ है। एक बार जरूर ऐसे संकेत आए थे कि अमेरिका में चूंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही है तो शायद ये $1,000 के स्तर के आसपास भी आ जाए। अब सोने की चमक कितनी चमकदार नजर आती है? देखिए, जो जैसे डॉलर बढ़ता है तो सोने की कीमतों में कमी आती है। दिस इज द नॉर्मल ट्रेंड। लेकिन वहां पर जब हमारा अंदाजा है कि जो डॉलर इंडेक्स है 97 के आसपास है, वो पीक हो गया है और आने वाले, और इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि नहीं बढ़ने वाले ऐसा लगता है अमेरिका में बहुत एग्रेसिवली, तो डॉलर में जो स्ट्रेंथ थी या जो उसका साइकिल था वो अब कुछ कम एक पीक पे पहुंच गई है और आने वाले दिनों में डॉलर में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। इसके चलते मुझे लगता है कि सोने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत तेजी तो मैं नहीं कहूंगा, पर $1,200 जैसे आपने कहा, मजबूती के दौर में तो कहीं ना कहीं बना रहेगा, गिरावट भी नहीं आएगी, तो स्टेबिलिटी जरूर लगती है। अब सोना अपनी वर्तमान चमक को बनाए रखेगा। ऐसा लगता है कि यही लेवल पे रहेगा। पुनीत, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Oil prices fall to lowest this year. Brent crude prices eased to $60.80 per barrel. Major Asian stocks decline amid trade tensions and signs of slackening of global growth. And gold prices slipped to 31,950 rupees per 10 grams at the Delhi's bullion market. आर्थिक सुर्खियां एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिरावट के साथ इस वर्ष के सबसे निचले स्तर पर दर्ज। ब्रेंट क्रूड के भाव गिरावट से $60.80 प्रति बैरल हुए। व्यापारिक तनाव और आर्थिक वृद्धि में कमी के संकेतों से प्रमुख एशियाई बाजारों में गिरावट और दिल्ली सराफा बाजार में सोना गिरावट से 31,950 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज। And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. But for now, from the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye. Market Mantra.